Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. Now we will do the femoral nerve. Femoral nerve की anatomy, applied anatomy, relations in different part of the thigh. So first of all, what is this femoral nerve? है क्या ये? So अगर मैं इस leg की बात करूँ, this is left leg from anterior side. आगे से देख रहा हूँ. We know the thigh. Thigh में 3 compartment होते हैं. This one anterior is known as the extensor. Anterior or extensor. Posterior is flexor. And middle side is the adductor. This is the adductor. So the femoral nerve is the chief nerve of extensor, that is anterior compartment. So इस compartment की chief nerve है femoral nerve. First MCQ question. Second, it is the largest branch of the lumbar plexus. So root value of the femoral nerve. Root value of the femoral nerve is the dorsal division of the anterior primary rami of spinal nerve L2, L3, L4. सो ये लिटिल बिट अभी यहाँ पे हम करते हैं इसको. अगर हम डायग्राम देखें L2, L3, L4. सो L2, L3, L4 इनके यहाँ से बनेगी नर्व L2I, L3 एंड L4. सो L2, L2, L3 एंड L4 ये मिलके बना रहे हैं एक स्पाइनल नर्व. अब ये स्पाइनल नर्व की जो एंटीरियर एमआई है ये दो में डिवाइड होगी. दैट इज द डोर्सल डिवीजन also known as posterior division and the ventral division that is known as the anterior division. So dorsal division of L2, L3, L4 की dorsal division मिलके बनाएगी femoral nerve. Dorsal division will form the femoral nerve. The ventral division of same that is L2, L3, L4 की anterior MI की ventral division will form the obturator nerve. So obturator nerve as well as femoral nerve दोनों की root value same है. Only difference is that femoral nerve is from dorsal division and the obturator nerve is from the ventral division. So अब आप इस लाइन को समझ गए हैं. एक बार देखिए. The root value of femoral nerve is the dorsal division of the anterior primary rami of spinal nerve L2, L3, L4. So little bit confusing है. I think अब आपको ये clear होगा. कोर्स इसका एब्डोमेन में बनी. हमने बोला पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में क्योंकि लंबर्स के साथ बनी है. हियर यू कैन अप्रिशिएट L1, L2, L3, L4, L5. सो दिस इज द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. एब्डोमेन की डायसेक्शन की गई है. एब्डोमेन से सारे ऑर्गन्स इससे निकाल दिए गए हैं. अब हम आपको एब्डोमिनल वॉल दिखा रहे हैं. तो राइट साइड देखिए. दिस इज द राइट साइड. राइट साइड में यू कैन अप्रिशिएट मसल. दिस इज द मसल. दिस वन इज द मसल. श्वास मेजर. So श्वास मेजर के सब्सटेंस में in the substance of the श्वास मेजर we have the lumbar plexus. That means अगर मैं लेफ्ट साइड देखूं, this is the left side, कट सेक्शन ऑफ श्वास मेजर. कट सेक्शन ऑफ श्वास मेजर. श्वास मेजर को काट दिया है तो आप ये नर्व्स का प्लेक्सिस देख सकते हो. दिस इज द लंबर प्लेक्सिस. सो लंबर प्लेक्सिस देखने के लिए हमें श्वास मेजर को काटना पड़ता है. तो दिस नर्व क्योंकि लंबर प्लेक्सिस से बनी, द femoral nerve is running along the lateral border of our श्वास मेजर. श्वास मेजर के लेटर क्योंकि अंदर से बनी थी. हमने अभी बात की L2, L3, L4 से बनी और ये ऐसे लेटरल ही ट्रेवल करेगी. ऑन द अदर साइड यू कैन अप्रिशिएट 1, 2 एंड 3 इनसे बनी femoral nerve. लाइक दिस femoral nerve will travel lateral to the श्वास मेजर. जब हम श्वास मेजर को डायसेक्शन करते हैं उसके लेटरली ये नर्व ट्रेवल कर रही होती है. दिस इज द थिक नर्व. Then this nerve is present in pelvis here. pelvis में है ये. तो pelvis में it is lying a groove. एक ग्रूव होती है या फरो होता है between two muscles. This is MCQ question. इलियाकस एंड श्वास मेजर. क्योंकि श्वास मेजर के तो ऑलरेडी ये लेटरल थी है और ये नीचे वाला दिस इज द इलियाकस मसल. इन दोनों के बीच में एक ग्रूव होती है. उस ग्रूव में ये नर्व रन करती है. सो दिस नर्व after formation it will travel in a groove between the श्वास major and the iliacus muscle. Here it is lying under the fascia iliaca. So actually it is lying under. अगर ये iliacus muscle है इसका जो fascia होगा इससे पीछे होती है. That's why जब ये हम ट्रायंगल में पढ़ेंगे it is present outside the sheath. femoral sheath के बाहर होती है because ये पीछे से आती है. जो स्ट्रक्चर आगे से आते हैं those are the vessels वो femoral sheath के अंदर कवर होते हैं. Then
फॉर्मेशन कर ली हमने, यहाँ से फॉर्म हुई, इट इज ट्रेवलिंग इन द फरो, इट विल देन रन बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट के अंदर से जाएगी, अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट, एंड नाउ इट विल रीच टू द triangle, that is the femoral triangle. Here in the thigh it is running anterior to the pectineus and iliacus. हमें पता है femoral triangle में इसका क्या रिलेशन है. Now in the triangle, अब हम triangle की बात करें, here this is the inguinal ligament, and अगर मैं ड्रा करने की कोशिश करूं तो this is the boundary of our triangle. So इस triangle की बात करें, nerve हमने बात किया, nerve is coming from the posterior abdominal wall like this, then it is now in the triangle. In the triangle, this nerve is lying lateral to the artery. So again this is the left leg, lateral side, medial side. You can appreciate medially we have the artery and laterally we have the nerve. So वैसे भी हमें पता है इस triangle में जो contents हैं हम उनको याद रखते हैं, medial to lateral vein, vein, artery, nerve. So nerve is lateral to the artery. Then it again it is present in a group, जो हमने बात की सेम ग्रुप होती है, that is between the iliacus muscle and the psoas major outside the femoral sheath. MCQ क्वेश्चन अभी हमने कर लिया, रीजन भी हमने बता दिया कि क्यों femoral sheath के बाहर है. So vessels of this area are inside the femoral sheath but nerve is outside the femoral sheath. After 2.5 centimeter from the inguinal ligament, this is inguinal ligament, यहाँ से 2.5 centimeter down, this nerve, the femoral nerve will divide into two. ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल में ही ये दो में डिवाइड हो जाती है, femoral triangle में. These are the anterior division and the posterior division of the femoral nerve. So femoral nerve यहाँ पर after 2.5 centimeter के बाद दो में डिवाइड होगी. अब आगे इसकी डिविजन्स, एंटीरियर डिवीजन की सिंगल मस्कुलर सप्लाई, दैट इज दी our sartorius, and two cutaneous, that is medial and intermediate cutaneous nerve of the thigh, because we know पूरे की पूरी femoral nerve थाई को सप्लाई करती है, वो भी anterior aspect को. तो anterior aspect के एक मसल को, that is the sartorius, and two cutaneous, that is medial and intermediate, one muscle 2C. ये anterior division की branches हैं. First of all, the medial cutaneous nerve. So again this is the nerve, femoral nerve. ये अब ब्रांचेस देगी मीडियल कुटेनियस. थाई की बात करें, दिस इज द लेटरल साइड, दिस इज द मीडियल साइड, एक्चुअली दिस इज द मीडियल कंपार्टमेंट वाली साइड है, एंड हियर इज द एंटीरियर कंपार्टमेंट. यहाँ की बात कर रहे हैं अब हम. यहाँ पर ब्रांचेस कैसे हैं, कुटेनियस है, स्किन की सप्लाई है, मीडियल है, मीडियल आएगी स्किन में, और कुटेनियस है, बिकॉज वी नो द लेटरल कुटेनियस अलग नर्व है, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई अलग, उस पर लेक्चर है हमारे पास, लंबर प्लेक्सिस की ब्रांच है वो. So now the medial cutaneous nerve, this medial cutaneous nerve will be divided into two. पहले हमारी femoral nerve थी, femoral nerve anterior and posterior division में डिवाइड हुई. अब anterior division की आगे है medial cutaneous nerve. This medial cutaneous nerve will divide into two. Before division होने से पहले ही ये एक ब्रांचेस देती है, कुछ रैमस देती है, ब्रांचेस देती है, अंदर से बाहर आएगी, ब्रांचेस देती है जो जिनको स्किन तक पहुंचना है, डेप्थ से आ रही है स्किन तक, तो दे विल सप्लाई द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ स्किन ऑफ द थाई नियर द सेफनस वेन. वी नो सेफनस वेन इज लाइंग लाइक दैट, ऐसे मीडियल से आती है सेफनस वेन लाइक दिस. सो सेफनस वेन के पास का जो एरिया है, ये सारा एरिया मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, ये सप्लाई हुआ मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई से. अब इसकी एंटीरियर डिवीजन थी, हमने बोला, और पोस्टीरियर डिवीजन है. एंटीरियर डिवीजन ऑफ दिस नर्व विल डिसेंड ऑन दी सार्टोरियस. सो ये सार्टोरियस है, अगर मैं स्किन वाले में डायग्राम में आपको दिखाऊं सार्टोरियस, सो वी हैव ए मसल फ्रॉम हियर एंटीरियर superior iliac spine से, लाइक दिस वी हैव द सार्टोरियस. सो सार्टोरियस के अलोंग ये नर्व अंदर से आ रही है, अगेन सार्टोरियस के अलोंग ये डिसेंड करेगी. अब जिस चीज को अंदर से बाहर आना है तो पहले डीप फेशिया को पियर्स करेगी, दैट इज द फेशियल आर्टा. सो इन द मिडल ऑफ थाई इट विल पियर्स द डीप फेशिया, तभी बाहर आ पाएगी. देन इट विल गिव द इनर्वेशन टू द मीडियल साइड ऑफ द थाई टिल नी तक की स्किन को इसने सप्लाई दी. देन इट विल
run along the saphenous nerve till infrapatellar branches। saphenous nerve की infrapatellar branches होती है, वहां तक ये सप्लाई करती है मीडियल वाली। देन पोस्टीरियर डिवीजन, अगर पोस्टीरियर डिवीजन की बात करूं तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर और अलोंग द सार्टोरियस होती है। अगेन इसे भी अंदर से बाहर आना है, तो ये भी पहले फेशिया लाटा को पेयर्स करेगी, इट विल पेयर्स द फेशिया लाटा एंड देन इट विल गिव some cutaneous branches for the medial aspect of the thigh and it will contribute in the subsartorial plexus। so subsartorial plexus हमने पढ़ा था हंटर कैनाल में, वहां पर हमारे पास मीडियल कुटेनियस नर्व की ब्रांच आती है। अगर इसको थोड़ा सा इजी सी पढ़ाऊँ आपको, तो नाम है इसका मीडियल कुटेनियस नर्व, तो इजीली याद करने के लिए आपके लिए मीडियल कुटेनियस नर्व विल गिव सप्लाई टू द मीडियल aspect of our thigh, front of thigh, not thigh, middle aspect तो इसका adductor है, front of thigh के middle side सारी की सारी medial cutaneous nerve की दोनों डिवीजन से होती है till the knee like this you should remember। ये आपको क्लियर होना चाहिए, कोर्स याद हो जाए वेरी गुड, अदरवाइज MCQ क्वेश्चन कोर्स से आते हैं सारे। नेक्स्ट वी हैव द इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व। इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व again it is the division that is cutaneous division of the anterior part, it will give supply first of all। अगर मैं again इंग्वाइनल लिगामेंट की बात करूं, हमने बोला था 2.5 सेंटीमीटर बाद फीमोरल दो में डिवाइड हो जाती है। अब इंग्वाइनल लिगामेंट से अबाउट 8 सेंटीमीटर, आफ्टर 8 सेंटीमीटर ये भी डेप्थ में नर्व थी, it will pierce the tensor fascia, it will pierce the fascia lata that is the deep fascia, then it will divide into two branches, कई बार पहले ही डिवाइड हो जाती है। then it will descend in front of the thigh, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट एरिया में जाएगी, इन फ्रंट ऑफ द थाई, इट विल गिव इनर्वेशन क्यूटेनियस है टू द स्किन ऑफ द नी विद पेरिपेटलर प्लेक्सस एंड इट विल कम्युनिकेट विद द ब्रांचेस दैट इज द फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफीमोरल नर्व। इसकी एक ब्रांच इंटरमीडिएट की जेनिटोफीमोरल की फीमोरल ब्रांच के साथ भी कम्युनिकेट करती है, जो कई बार सार्टोरियस मसल को पियर्स करती है और इन सम केसेस यही सार्टोरियस को सप्लाई भी कर देती है। कौन सी? इंटरमीडिएट। तो अगर मैं अब इंटरमीडिएट और मीडिएट दोनों की बात करूं तो ये एरिया टिल नी दैट इज द एंटीरियर एस्पेक्ट का जो मिडिल पार्ट है, ये सारे का सारा इंटरमीडिएट एज वेल एज मीडियल कुटेनियस नर्व स्किन ने यहाँ को सप्लाई दी। नेक्स्ट इज द मसल, सिंगल मसल सप्लाई करती है एंटीरियर डिवीजन, दैट इज द सार्टोरियस, द मेजर मसल दैट इज दिस मसल। इस मसल को भी एंटीरियर डिवीजन सप्लाई करती है। मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो नर्व की ओरिजिन है दैट इज एट द सेम पॉइंट ऑफ द इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व ऑफ द, जहां उसका ओरिजिन होता है उसके साथ ही ओरिजिन होता है। नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन में बाकी जो एक्सटेंसर्स बच गए थाई के वो आएंगे, दैट मींस रेक्टस फीमोरिस, तीनों बास्टाई एंड दी और आर्टिकुलर जीनू एंड क्यूटेनियस, सिंगल कुटेनियस दैट इज द सेफनस नर्व। फर्स्ट में दैट इज एंटीरियर डिवीजन में सिंगल मस्कुलर थी, पोस्टीरियर डिवीजन में सिंगल कुटेनियस C1 है, M3 है यहाँ। नाउ मस्कुलर ब्रांचेस सारे ही मसल्स बचे जो हमारे पास उनको सप्लाई करेगी, तो दीज आर द क्वाड्रिसेप फीमोरिस, उनको सप्लाई करती है। दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल द रेक्टस फीमोरिस। रेक्टस फीमोरिस की नर्व जो है वो फर्स्ट ब्रांच यहाँ से आती है पोस्टीरियर डिवीजन की फॉर रेक्टस फीमोरिस, दिस इज द रेक्टस फीमोरिस। यही ब्रांच ये हिप जॉइंट को भी देती है यहाँ से सप्लाई, तो हिप जॉइंट भी इसी नर्व से सप्लाइड होता है। देन लेटरल लार्ज ब्रांच इज फॉर द लेटरालिस, हियर इज द वास्टस लेटरालिस, हियर इज द वास्टस लेटरालिस। वास्टस लेटरालिस के लिए एक लार्ज ब्रांच आती है पोस्टीरियर डिवीजन की, ये ब्रांच कम्युनिकेट करती है या ट्रेवल करती है विद आर्टरी दैट इज द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, फ्रॉम फीमोरल आर्टरी की जो ब्रांच है उसके साथ डिसेंड करती है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं डाइसेक्शन करें हम यहाँ, तो हमारे पास न्यूरोवस्कुलर बंडल है, दैट इज न्यूरोवस्कुलर बंडल। आई थिंक यू नो वी हैव द वेन, आर्टरी एंड सम नर्व, अगर एक ही बंडल में ट्रेवल करती हैं तो इसको बोलते हैं न्यूरोवस्कुलर बंडल। तो लेटरालिस वाली, वास्टस लेटरालिस वाली पूरे न्यूरोवस्कुलर बंडल में ट्रेवल करती है, मोस्टली हमें आर्टरी के साथ मिलती है। किस आर्टरी के साथ? MCQ क्वेश्चन, लेटरल साइड है क्योंकि लेटरालिस है, सो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी के साथ ये ट्रेवल करती है। देन नेक्स्ट फॉर द वास्टस मीडियालिस, हमने पहले भी पढ़ा है इन द हंटर कैनाल, इट इज प्रेजेंट इन द एडक्टर कैनाल और द हंटर कैनाल, सो वास्टस मीडियालिस, दिस वन
साइड इज द वास्टर मीडियलिस, वो हंटर कैनाल की बाउंड्री बनाता है, तो उसके लिए ये नर्व है। इट इज प्रेजेंट इन द एडक्टर कैनाल एंड इट इज प्रेजेंट लेटरल टू द सेफनस nerve. Here we have this nerve. I should change the color. Yeah. So it will travel like this. Then it will send branches to the muscle even till the knee. Knee तक ये branches देती हैं अपनी. Then vastus intermedialis, we know it is the not deep muscle but it is deep. It is below the rectus. रेक्टस के नीचे होता है, तो इंटरमीडियलिस को एंटीरियर सरफेस के साथ होता है थाई में, तो ये मिड ऑफ द थाई से एंटीरियरली इट विल गिव ब्रांचेस टू द वास्टस इंटरमीडियलिस. लास्टली वी हैव द आर्टिकुलर जीनू, इट इज स्मॉल मसल. इसको सिंगल ब्रांच आती है और कई बार सम ब्रांचेस होती हैं जो आर्टिकुलर जीनू को आती हैं, उसके थ्रू ये ब्रांचेस नर्व जो हैं वो नी जॉइंट तक आई. सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये नर्व दैट इज द फीमोरल नर्व की कोई भी ब्रांच हिप जॉइंट को भी सप्लाई करती है, फीमोरल नर्व नी जॉइंट को भी सप्लाई करती है. सो रेडिएटिंग पेन इसी की वजह से होती है यहाँ पर. नाउ द सेफनेस नर्व हमने अभी किया, इट इज ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन. सो इट इज द लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द फीमोरल नर्व. फीमोरल नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन की ये ब्रांच है, लेकिन अगर क्यूटेनियस नर्व की बात करूँ, दिस इज द लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द बॉडी टू. सो बॉडी की भी लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व इज द सेफनेस नर्व. दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन. नाउ अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, सो दिस वाज द एरिया ऑफ फीमोरल ट्रायंगल. अगर मैं फीमोरल ट्रायंगल की बात करूं, यहाँ पर हमने बात की थी फीमोरल नर्व दो में डिवाइड होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन. इसकी जो पोस्टीरियर डिवीजन है वहां से हमारे पास सेफनस नर्व है. सो दिस इज दिस सेफनस नर्व. दिस इज रनिंग लेटरल, सो इट इज द लेटरल साइड. दिस इज रनिंग लेटरल टू द आर्टरी. सो यू कैन अप्रिशिएट, ये रेड कलर वाली आर्टरी है. सो फीमोरल आर्टरी से लेटरल ये रन करती है till the adductor canal. We know femoral canal की continuation is the adductor canal. So in middle of the thigh के middle में saphenous nerve will give branches to the plexus. We know the plexus that is subsartorial plexus. So सबसे पहले यहाँ के लिए branches देगी, then ये canal में गई. अब ये nerve जब canal में गई, adductor canal में, here it will cross the artery. पहले artery से lateral थी, now in the canal it will cross the artery and become medial. So artery से middle side में आ जाती है ये in the canal. So, canal में अगर मुझे nerve anesthesia के लिए यूज करनी है, तो I should remember that the nerve is middle to the artery. Again this is MCQ question. Then it will leave the canal, that is adductor canal को leave करेगी and it will pierce the aponeurosis. हमें पता है एडक्टर कैनाल वाले लेक्चर में हमने देखा है यहाँ पे एपोन्यूरोसिस है. सो इट विल पेयर्स दिस एपोन्यूरोसिस, नर्व विल पेयर्स दिस एपोन्यूरोसिस विद आर्टरी, जो कि हमने पढ़ी थी, दैट इज द डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी. उसके साथ ये एपोन्यूरोसिस को पेयर्स करके बाहर आएगी. हमने बोला दिस इज क्यूटेनियस, सो किसी भी मसल को सप्लाई नहीं देगी, ये स्किन को सप्लाई करेगी. सो अगेन अगर एक बार डायग्राम नंबर 1 में देखें, दिस इज द लेफ्ट थाई, एंटीरियर साइड से देखने लगे हम. सो दिस इज द एरिया ऑफ अवर femoral triangle. We know this femoral triangle will continue with the adductor canal here on the middle side. So हम अब सेफनस नर्व की बात कर रहे थे. femoral nerve की posterior division से सेफनस नर्व आई. अब ये सेफनस नर्व femoral triangle के बाद adductor canal में जब आई, यहाँ से ये नर्व है क्यूटेनियस, तो इसको बाहर आना है स्किन की साइड. सो इट विल पेयर्स द फेशिया, ये डी फेशिया को पेयर्स करके बाहर आएगी. सो दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन कि ये कहाँ से पेयर्स करती है. इट विल पेयर्स द फेशिया लाटा इन बिटवीन sartorius एंड gracilis. वी नो दिस इज द एरिया ऑफ sartorius. Like this we have the sartorius muscle on anterior group, and from the medial group we have the gracilis. Like this we have the gracilis. So gracilis और sartorius के बीच से ये नर्व पेयर्स करती है फेशियल आटा को, and it will become cutaneous. It will take part in formation of prepatellar plexus. prepatellar plexus को ये हेल्प करती है बनाने में. कौन सी इसकी आर्टरी, इसकी नर्व की ब्रांच, दैट इज द इंफ्रापटेलर ब्रांच. देन
it will give innervation, that is the cutaneous supply to the anterior side of the patella. अगर मैं सेकंड डायग्राम की बात करूं, ये अंदर से पियर्स करके ब्रांच बाहर देगी सेफनस, then it will give cutaneous branch to the anterior side of the patella, then it will descend down along the long saphenous vein. We know here it will descend like this along the long saphenous vein along the medial side of our tibia. So tibia bone के medial side में ये travel करेगी like this down. Then it will divide into branches. One branch will give innervation of the skin till the tibia, and second branch will run anteriorly. Second branch की बात करूँ तो again इस एरिया को सप्लाई करेगी, and it will run anterior to the ankle joint, and it will give innervation to the skin of the foot till first metacarpopharyngeal joint. So first metacarpal हैंड में होती है, फुट में टार्सल्स होती हैं, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट तक ये इस एरिया की इनर्वेशन करती है स्किन सप्लाई. सो दिस एरिया जो अभी हम शेड कर रहे हैं, सारे का सारा एरिया is supplied by the saphenous nerve. Now this saphenous nerve will form the anastomosis or connection with the medial branch of the superficial fibular nerve. And अगर हम इसकी अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें, सो हमने पहले बात की दिस इज द एडक्टर कैनाल. सो एडक्टर कैनाल में हमें पता है एडक्टर कैनाल की बाउंड्रीज मसल्स होती हैं. इफ देयर इज हाइपरट्रोफी ऑफ द मसल, तो ये जो नर्व थी सेफनस नर्व, इस नर्व का यहाँ पे एंट्रैपमेंट हो सकती है. फर्स्ट इसका अप्लाइड एनाटॉमी. सेकंड अप्लाइड एनाटॉमी, हम यहाँ पे इस नर्व को एनेस्थाइज कर सकते हैं इफ वी वांट टू परफॉर्म एनी सर्जिकल प्रोसीजर ऑन द medial aspect of the thigh and the posterior side of the medial side of the leg and the posterior side of the leg till the first metatarso-pharyngeal joint. So this is the applied anatomy of our great saphenous nerve. Now femoral nerve को अगर हम पूरी को एक बार देख लें, so इसकी branches ट्रंक से, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रंक से दो ब्रांचेस देती है इन दी एब्डोमेन. फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, एब्डोमेन में फॉर इलियाकस एंड पेक्टिनियस. सो इन दोनों मसल्स को ये ट्रंक में ही ब्रांच दे देगी. देन इट विल डिवाइड इनटू टू, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिवीजंस. एंटीरियर डिवीजन सिंगल मसल, दैट इज द sartorius, posterior and two cutaneous, this is the intermediate and medial cutaneous nerve of the thigh. So thigh को इनर्वेशन होगी. posterior division के three muscles, these are the rectus femoris and vastae and the articular genu, and only one cutaneous supply, that is the saphenous nerve. Now lastly cutaneous nerve supply of the thigh. आपको क्वेश्चन आता है ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ cutaneous supply of the thigh. अगर मैं थाई की बात करूं, सो दिस इज द जो अभी ग्रीन कलर में ड्रा कर रहा हूं, दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट. फर्स्ट डायग्राम इज फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट. लेफ्ट थाई को आगे से देख रहे हैं, तो हमें नर्व सप्लाई कैसे मिलती है. लेटरल साइड, मीडियल साइड. लेटरल मोस्ट, हियर वी हैव दिस ट्रायंगुलर एरिया below the inguinal ligament. This is from subcostal. T12 इसकी रूट वैल्यू है. सो ये ट्रायंगल सबकोस्टल नर्व इसकी स्किन को सप्लाई करती है. देन इससे आगे वाला, दैट इज द फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल. अबव द ट्रायंगल जो फीमोरल ट्रायंगल के ऊपर का एरिया है, ये वाला एरिया यहाँ पे होती है फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफीमोरल नर्व. इससे मीडियल आऊं, देन वी हैव द इलियो इंग्वाइनल नर्व. So near the scrotum or the pudendal area we have the ilio-inguinal nerve like this. Now below this, इससे नीचे जब आऊँगा तो lateral side we have the lateral cutaneous nerve of the thigh. जो मैंने पहले ही बात की है, lateral cutaneous nerve of the thigh is branched from the lumbar plexus. ये आज हमने नहीं की है. So this is the lateral cutaneous nerve of thigh. laterally thigh की इनर्वेशन करने लगे. इसके मीडियल हमने अभी किया है. इसके मीडियल वी हैव द इंटरमीडिएट cutaneous nerve of thigh till knee, as well as we have the medial cutaneous nerve of thigh till knee. So ये वाला एरिया इन दोनों ने किया, इंटरमीडिएट एंड मीडियल cutaneous
branches from the anterior division. Now this is adductor side, medial side is the adductor side, so we know nerve supply of adductors are obturator, so this is for the obturator. So like this from anterior side. From posterior side अगर मैं पीछे से देखूं, this is posterior aspect, this is the posterior aspect. सिर्फ थाई की करेंगे, ग्लूटियल वाली ग्लूटियल रीजन में करेंगे. Now this side is the lateral side, तो laterally we have the lateral cutaneous nerve of thigh, and medial most we have the obturator nerve. In between these two we have the posterior cutaneous nerve of thigh till the posterior aspect of the leg. Like this we have the posterior cutaneous nerve of thigh. So ऐसे थाई की इनर्वेशन है. हमने अभी बात की है जॉइंट की एंड दी मसल्स की. इंजरीज टू द फीमोरल नर्व अप्लाइड एनाटॉमी. अब फीमोरल नर्व को इंजरी हो सकती है. फीमोरल नर्व को कहाँ इंजरी हो सकती है? इसके थ्रू आउट कोर्स में हो सकती है, दैट इज पेनिट्रेटिंग वुंड. पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है कहीं भी, लाइक इन फीमोरल ट्रायंगल. इन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल अगर इंजरी होती है कहीं तो वहां भी इंजरी हो सकती है. सो इससे क्या होगा? इससे क्लिनिकली वी नो इसकी मोटर सप्लाई है एंड इसकी सेंसरी सप्लाई है. सो मोटर सप्लाई इज फॉर द एक्सटेंसर्स ऑफ द थाई, दैट मीन्स पैरालिसिस ऑफ द एक्सटेंसर्स ऑफ द थाई ऑफ द नी के एक्सटेंसर्स हैं सारे ये. सो नी के एक्सटेंसर्स की इनर्वेशन की वजह जाने की वजह से पैरालिसिस ऑफ द एक्सटेंसर ऑफ द नी, सो नी विल बी फ्लेक्स्ड. सेंसरी सप्लाई जो एरिया हमने अभी कलर किया है, द मिडल पार्ट ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, यहाँ पर पेशेंट को पेन होगी एज वेल एज पैरास्थीजिया होगा. वो क्यों होगा? क्योंकि मिडल एंड द इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई आर प्रेजेंट ओवर हियर. सो इनकी इनर्वेशन का डैमेज होगा. अगर मैं बात करूं फीमोरल नर्व की इनसाइड द एब्डोमेन, मेन ट्रंक जहां बनती है लंबर प्लेक्सस, वहां पे इंजरी अनकॉमन है, वेरी रेयर इंजरी है, लेकिन वहां पे हो क्या सकता है? बिकॉज वो पेरिटोनियम के पीछे है, तो रेट्रोपेरिटोनल अगर ट्यूमर है या रेट्रोपेरिटोनियल हेमेटोमा है पेशेंट को किसी भी रीजन से, तो वो प्रेस हो सकती है. कौन? फीमोरल नर्व प्रेस हो सकती है. उसकी वजह से सिम्टम्स आर सेम जो भी हमने लास्ट स्लाइड में बात की. एक होता है हमारे पास द रेडिएटिंग पेन, पेन फ्रॉम द हिप जॉइंट. इफ देयर इज इंजरी और एनी पेन इन द हिप जॉइंट कैन रेडिएट टू द नी जॉइंट. The anatomical basis of this question is because the nerve supply of both joints is same, cutaneous nerve supply as well as the nerve supply. हमने अभी किया femoral nerve. Femoral nerve is the main nerve of these two joints as well as obturator nerve भी होती है. तो नर्व सप्लाई इन दोनों की सेम होती है. तो अगर एक जॉइंट में प्रॉब्लम है तो वो पेन दूसरे जॉइंट को रेडिएट हो सकती है. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it and share it.